Okay. Assalamu alaikum. Hello and good evening, everybody. I hope I'm audible to you guys. Yes, you are. Okay. So, a very warm welcome to another episode of Farm and Forestry Talks to all who have joined us today on yet another career advancement journey. I'm Almaz Zahid, and along with my other co-members, Huba Gulzar, Neha Tahir, Maria Farouk, and Sanazgar. So, I hope everybody is doing great. Thank you for joining us today. And before we dive into today's very interesting topic that I will be talking about further, if you've missed our previous session with our speaker, Dr. Rehan Anjum, on patient care, then you can go and visit our YouTube channel and grab some very good insights on patient care. If others can just mute their mics, please. Thank you. So also we have a very exciting course coming up, especially for those who want to have a practical exposure from a clinical pharmacy perspective. Uh, so we will be updating everybody on that as well. So let us just continue with our session today. Our very interesting topic that we have is quality matter, a career in healthcare management. So today we will be talking about how a career in quality management in healthcare can be an option for you. For all those who are still looking out for their career options, quality is one of those very important aspect in any organization that you're working at, which can just really just help you enhance your career on its own. So without further ado, joining us today, we have a very esteemed guest who has a vast experience in quality management. One of our mentors, Dr. Nabil Kamar Ali, who is a member of American College of Healthcare Executives. He's a certified professional in healthcare quality, CPHQ, and in patient safety, IHI. He's a certified lead auditor and is currently manager quality management at Ali Medical Center, Islamabad. And he's also an assistant professor at Rifa International University. So, hello, sir. How are you today? Thank you so much for your kind words. Good evening to everyone. That's great. So thank you, sir, for joining us today in our session. We are really honored कि आपने जो है ना हमारे लिए time निकाल के you have joined us today. So let's move on. Sir, आपका बहुत ज़्यादा experience है in quality management. So let us talk about हमारी जो audience है, they're looking forward to different options in different things in pharmacy. अगर हम quality की बात करें, so how do we look at it? What exactly is quality management system? And can you just highlight the significance of it in healthcare industry? कि उसमें हमें क्यों चाहिए? Why do we need a quality management system? What is it? Can you just explain to our audience कि पहले वो है क्या चीज़? Thank you. I hope कि आपको मेरी आवाज़ बेहतर आ रही होगी. First, I would like to share कि quality क्या है? Quality, what is quality? मतलब आप लोग सब सुनते होंगे क्वालिटी के बारे में. एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट क्वालिटी. आज से अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं तो हेल्थ केयर में यूजुअली हेल्थ केयर क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज नॉट वेरी कॉमन. But in these days, globally and fortunately in Pakistan also, जो क्वालिटी हेल्थ केयर है या हेल्थ केयर डिलीवरी है, पेशेंट सेफ्टी है, इनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक बेहतर तरीके से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसका पार्ट बनता जा रहा है. अच्छा, क्वालिटी की अगर बात करें तो हम लोग हमेशा
जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं या हमारा जो एक रूटीन अपना डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, हम कहीं भी जाते हैं, कोई मार्केट में जाएँ, कुछ चीज़ देखें, कुछ चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, कोई सर्विस लेने जाते हैं, कोई भी अगर आप सर्विस ऐसी ले रहे हैं तो यू आर वेरी फोकस्ड ऑन क्वालिटी। यानी आपका कंसर्न होता है कि आपको जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं दैट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, जो चीज़ आप खा रहे हैं दैट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। मतलब एक हर चीज़ जो एक एंगल है वो हम क्या देख रहे होते हैं कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए चीज़ों की, गुड क्वालिटी आपको सर्विस मिलनी चाहिए। जो चीज़ आप परचेज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी आपकी डेली लाइफ रूटीन की चीज़ें हैं, दैट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। हेल्थ केयर की बात हम करते हैं तो हेल्थ केयर में हेल्थ केयर क्वालिटी जो है उतना उसका भी जो रोल है, उसकी इम्पोर्टेंस है वो उतनी ही ज़्यादा है। क्योंकि हॉस्पिटल में आप लोग सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, आपको आइडिया है बिल्कुल कि जब भी हम हॉस्पिटल की बात करते हैं इसका मतलब है कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। जब ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल मैटर। सो इस क्रिटिकल मैटर को efficiently डील करने के लिए there is a need of quality healthcare and patient safety. Quality या quality management system basically is a formalized system. A formalized system है that documents process, procedures and responsibilities. यानी आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं या ऐसा सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं जिसके थ्रू आप अपने सारे प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को और असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज को डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करने का मकसद इज नॉट जस्ट अ पेपर वर्क कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसके पास रिव्यू कर सकते हैं, नहीं। इन सब चीजों का मकसद ये है कि वो आपके पास अवेलेबल हो, उसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन हो और इट इज रेडीली एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉई ऑफ द हॉस्पिटल और एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो उनको रिव्यू कर सके और उसको गो थ्रू कर सकें फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर डेली टास्क्स। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो जब हम इन प्रोसेस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो इसके थ्रू हम लोग अपने जो क्वालिटी पॉलिसीज हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन, गोल्स होते हैं उनको इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें पर्टिकुलरली तो इसमें कौन सी ऐसे एरियाज हैं जिनको हम रूटीन में देखते हैं जिनके अंदर हेल्थ केयर क्वालिटी या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम डिफाइन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। कंट्रोल करने का क्या मकसद होता है? कंट्रोल करने का मकसद ये होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर या यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेसेस। यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सर्विस दें तो वो हर बंदा उस प्रोसेस को एक ही तरीके से एग्जीक्यूट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हेल्थ केयर क्वालिटी, आप हॉस्पिटल में कोई भी अगर ऑपरेशन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल चले मेडिकेशन डिस्पेंसिंग की बात करते हैं, बीइंग अ फार्मासिस्ट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग की अगर बात करें तो मेडिकेशन डिस्पेंसिंग का एक हॉस्पिटल का एक तरीकेकार होता है, एक एसओपी होता है, एक पॉलिसी होती है। अगर सब लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप इसको इफेक्टिवली जो है अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे और जो मेडिकेशन डिस्पेंसिंग का प्रोसेस है उसमें कोई एरर नहीं होगा या एरर के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो प्रोसेस को हम कंट्रोल करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस के थ्रू से। वेस्ट रिड्यूस करते हैं अपने सिस्टम में से। वेस्ट रिड्यूस करना जो है एक ये वो वेस्ट नहीं है जो हम यूजुअली फिजिकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, दैट इज वेस्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं और जो एक्स्ट्रा ऐसे एरियाज हैं जो कि हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं होते, लेकिन हम उनके थ्रू उनको अपने प्रोसेस में या अपने जो हमारे साइकिल्स होते हैं या फ्लो चार्ट्स होते हैं प्रोसेस के अंदर से हम उनको रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे प्रोसेस ज्यादा स्मूथ हों और ज्यादा रेडिली हम उनको क्विकली कर सकें। एरर्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को फैसिलिटेट किया जा सकता है, स्टाफ को एंगेज कर सकते हैं हम इसके थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डायरेक्शन देते हैं। देखें हमारे जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं वो लीड करते हैं किसकी तरफ? हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे तो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमें एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा हम अपनी रेडीनेस टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। मैंने यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर या यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेस की बात की। जब सब लोग एक ही तरीके से एक काम करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट रहते हैं और वेरिएशन इन रिजल्ट्स जो है वो हेल्थ केयर में उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका एक एरर आपके जो पेशेंट है उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और उसके अलावा अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें अचीव होती हैं तो हमारा एक अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमने अपने पेशेंट की
जो सेटिस्फेक्शन है उसको अचीव करना है। तो अल्टीमेटली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड्स टुवर्ड द पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड quality of patient care and uniformity of care through all these process, procedures and responsibilities that we assign through quality management system. Ji. That was very well explained. Thank you, sir. I hope everyone just generally got an idea कि quality management की importance कितनी है in healthcare management. Let's talk further. अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने एक as a quality manager or just a quality officer आपने ये देखना है कि how does the workforce affect the level of performance? अगर हमने for example we have to ensure कि there is a set of skill of particular एक section है, let's take pharmacy department, we want to ensure कि employees की maximum performance होती है, everyone has a level of performance एक according to their set of skills. तो अगर हम इसकी बात करें, let us incorporate that into quality management. So how do you think from a quality management department's perspective in any organization, can you ensure safety culture in that place? अच्छा, सेफ्टी कल्चर की अगर हम बात करें तो सेफ्टी कल्चर जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर इन सिंपल वर्ड्स कल्चर क्या है? कल्चर वो हमारे प्रोसेसेस हैं या कल्चर हमारा वो एक नॉर्म्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, सोसाइटी नॉर्म्स हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उनको नॉर्मल समझा जाता है या जिनको समझा जाता है कि ये वो चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है या ये वो चीजें हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्ट किया जाता है या इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बेसिकली वो कल्चर होता है। जैसे हमारे अपने सोसाइटी कल्चर्स होते हैं, नेशनल कल्चर्स होते हैं, इंटरनेशनल कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर होते हैं। इसी तरीके से सेफ्टी कल्चर भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए। सेफ्टी कल्चर बेसिकली ये है कि आपके हर प्रोसेस से, हर एम्प्लॉय से, हर स्टाफ से सेफ्टी जो है या सेफ्टी रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनसे नजर आनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि यू टॉक सेफ्टी, यू वॉक सेफ्टी, यानी आपके हर एक्शन से जो है ना वो पेशेंट सेफ्टी जो है उसका पता चलना चाहिए। अगर सेफ्टी कल्चर को हम लोग इनकॉर्पोरेट करना चाहें अपने हॉस्पिटल में या अपने डिपार्टमेंट में या अपने सेटअप में, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हम सेफ्टी कल्चर को इनकलकेट करने के अपने सिस्टम में इंश्योर करते हैं। दैट इज क्लियर सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि आपने अपने पास कुछ सेफ्टी मेजर्स जो लिए हैं या सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर पेशेंट के लिए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं, आप देख लें कि आपके पास अगर मेडिकेशन एरर्स की बात हो रही है तो आप ये कहते हैं कि कुछ हमने अपने ऐसे ट्रू मेजर्स लिए हैं कि हम अपने हाई अलर्ट मेडिकेशन को का जो एरर है उसको हमने उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है, हमने लासा मेडिकेशन की सेफ्टी को इंश्योर करना है, हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन से इंश्योर करना है, हमने इंसिडेंट मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो, कस्टमर से जो कंप्लेंट्स हैं उनको कम करना है, हमने जो फायर सेफ्टी है उसको कैसे मेंटेन करना है। तो बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं हॉस्पिटल में जिनको इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है। अब वो सेफ्टी रूल्स क्लियर होने चाहिए और उनके प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वाइड पता होना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है और वो इन प्लेस भी हैं और उनके प्रोसीजर क्या है कि उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। नंबर 2, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेली टास्क में जो है एम्प्लॉय की जो है वो आप पार्टिसिपेशन उसको कैसे इंश्योर करते हैं। एक तरीका का तो ये होता है कि जैसे आपने मैनेजमेंट स्टाइल्स या इस तरह जो आप स्टाइल्स देखते हैं कि आप एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है कि ऑर्डर हुआ और उसके बाद ये कि स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसने वो काम को एग्जीक्यूट करना है रिगार्डलेस के वो क्या चाहते हैं या किस तरीके से उनकी एक कोई राय है या क्या है। या कुछ ऐसे पार्टिसिपेटिव मेथड्स भी होते हैं कि आप स्टाफ को जो है पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं कि वो अपनी जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इनपुट दे सकें। उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट या सेफ्टी कल्चर जो है वो इस चीज के लिए एक रूल है कि आप एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें। नंबर 3 पे है मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड बाय इन। अच्छा, मैनेजमेंट कमिटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल होगा आपके ध्यान में कि मैनेजमेंट कमिटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी कल्चर के लिए या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी इज अ मैनेजमेंट ड्रिवन एक टेक्निक है या एक कल्चर है या एक प्रोसेस है
अगर मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी तो सेफ्टी कल्चर कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता सिस्टम में। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है दैट इज मैंडेटरी। नंबर नेक्स्ट जो है वो है रिगरस रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अगर देखें तो ग्लोबली बहुत सारा वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च का डाटा आता है, बहुत ज्यादा रिसर्च जो है दुनिया में की जाती है हेल्थ केयर के अंदर। एक हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं या कुछ डाटा लेना चाहते हैं तो भी गो फॉर इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स, इंटरनेशनल स्टडीज के ऊपर हम बेस कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत कम डाटा है जो पाकिस्तान में हमें अवेलेबल होता है। इसकी वजह ये है कि रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस उनको इंश्योर किया जाना चाहिए है। रिपोर्टिंग किसी भी चीज की हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट्स की है, एरर्स की रिपोर्टिंग है। अगर रिपोर्टिंग होगी तो सिस्टम फुल प्रूफ किया जा सकेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है या सिस्टम में ये इस बात का नॉलेज नहीं है कि क्या चीजें एरर कॉज कर रही हैं या क्या ऐसे प्रोसेसेस है जिनका ठीक होना जरूरी है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस ठीक नहीं हुआ। वो प्रोसेस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। हो सकता है कि 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा वो प्रोसेस जो आपको हार्म ना करे, लेकिन रिपोर्टिंग ना होने की वजह से, अगली रिपोर्टिंग ना होने की वजह से जब वो एरर कॉज आपको हार्म कॉज करेगा तो दैट वुड बी अनबियरेबल, या वो आपके लिए बहुत जो है ना एक नाकाबिले बर्दाश्त किस्म के जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए लेके आएगा। और एक और इसका जो एलिमेंट है वो है कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट। कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट क्या है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ये होता है कि आप डेली देखिए, कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को एवरीडे बेसिस के ऊपर इम्प्रूव करना है। हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज से 4 साल बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे, 10 साल बाद हमारे क्या करियर गोल्स होंगे, 20 ईयर्स के बाद करियर गोल्स क्या होंगे, वीकली गोल्स क्या हैं, क्वार्टरली गोल्स क्या हैं। हम इसमें गोल्स को सेट करते हैं। क्यों गोल सेट करते हैं? ताकि हम कमिटेड हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी करियर इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी करियर ग्रोथ के लिए। तो यही इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो इसका प्रोसेस हर वक्त चलते रहना चाहिए, चीजें आइडेंटिफाई होती रहनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा लिंक इसका जो है ना रिगरस रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस के साथ भी। चीजें रिपोर्ट होंगी, चीजें लाइमलाइट में आएंगी तो इम्प्रूव भी होती जाएंगी साथ साथ। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। बहुत अच्छे से जो है ना सर ने बताया, वेरी वेल डिफाइन करके ना स्ट्रक्चरली देयर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टेक हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अगर हमने टारगेट करनी है वर्टिकल ग्रोथ, तो what do you think are the processes of improvising quality management in an organization इस पर्सपेक्टिव से? इसमें डू वी नीड प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, साइकिल? बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है? अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ पर्टिकुलरली चल रही है, यू गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स उसके ऊपर, तो अब जैसे हमने वी नीड टू रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स, या फिर हमने डिस्पेंसिंग टाइम रिड्यूस करना है, वी हैव टू जस्ट इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, या कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैप? हाउ डू यू नो कि यहाँ पे मैं क्वालिटी को आई कैन बेसिकली इम्प्लीमेंट क्वालिटी हियर एज अ क्वालिटी मैनेजर, ये ऑडियंस के लिए, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दिस एज अ करियर। तो इसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसमें जो है ना फर्दर में एलैबोरेट करके बताएं ठीक है, हाउ इट वर्क्स। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने बात की वर्टिकल ग्रोथ की, और वर्टिकल ग्रोथ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से जो हेल्प कर सकते हैं आपको करियर, जो वर्टिकल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें फिर आप ये देख लें कि अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको रूटीन लाइफ की एक एग्जांपल देता हूँ कि ज़रा हम सब लोग एक एजुकेशन सिस्टम से गुजर के आए हैं। हम लोगों ने मेट्रिकुलेशन किया, फिर उसका बाद इंटर किया, फिर हमने डिग्रीज की अपनी। तो इन सारी डिग्रीज में एक चीज़ कॉमन रही होगी सब में, वो ये चीज़ होती है कि जो एग्जाम का एक होता है ना, वो एग्जाम जब हम देते हैं, एग्जाम तो उससे हर कोई गो थ्रू हुआ होता है। जब भी एग्जाम देते हैं हम लोग, तो हम एक बात जरूर करते हैं एग्जाम के बाद कि हमारा पेपर अच्छा हुआ था।
ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 90% लोग ऐसे हैं जिनका पेपर जब भी दे के आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं। हम सब इस यूनिवर्सिटी में तो खैर ज्यादा नहीं, लेकिन एफएससी मैट्रिक में बहुत ज्यादा होता है। पेपर सबका अच्छा होता है, 90% लोगों का पेपर हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो शायद 50-60% लोग जो है ना उनका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन बाकी लोग जो है वो इस चीज को देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों हमें ऐसा लगा कि हमने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, शायद टीचर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए, टीचर गुस्सा टीचर को था, या टीचर ने ग्रज निकाला हमसे, बहुत चीजें हम सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसको अगर हम ट्रू डायरेक्शन में देखें ना, तो एडवर्ड्स डेमिंग हैं जिनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ क्वालिटी भी हैं। इनकी एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है आपके लिए कि आपको ये कि आपने अच्छा काम करना है, इट्स नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपने बेस्ट करना है, यानी आपने ये नहीं करना कि मैंने तो अच्छी तैयारी कर ली है अब मेरा पेपर अच्छा होगा। यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने किस तरीके की मेहनत करनी है, तो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। यानी अगर आप एक कोई क्लास में एक टॉपर भी होता है, कुछ लोग मीडियोकर भी होते हैं, कुछ जो है वो लो स्कोरिंग भी होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जो लोग इस तरीके इसको एनालाइज कर लेते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी जो है वो जो है वो सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है कि हमने क्या करना है, और उसके बाद हम अपना बेस्ट देते हैं तो हमारे रिजल्ट 90% के 100% वाले अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी में हमें ये देखना पड़ता है कि हम चीजों में कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट लाने की जरूरी क्या चीज है कि हमें ये पता हो कि इंप्रूवमेंट लाने का तरीकेकार क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, या प्रोसेस ऑफ या स्टेप्स वो क्या हैं कि जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हम अपनी डायरेक्शन या अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम अपने प्रोसेस को एक दफा गो थ्रू करें, प्रोसेस मैपिंग करें, और हम ये देखें कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम ए से स्टार्ट करें और जी तक अपने प्रोसेस को लेके जाएं, और सारी जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनको हम लिस्ट डाउन करते जाएं, फ्लो चार्ट की सूरत में कर लें या हम अपनी कुछ और डायग्राम की सूरत में कर लें। उसके बाद हम ये देखें कि हमारे इस प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं, वो गैप्स जो कि हमें फ्यूचर में हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं और हमारी ग्रोथ को हार्ट कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए तरीकेकार ये होता है कि आप पूरा प्रोसेस जो है उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से अपने जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस प्रोसेस को ठीक कैसे करना है। देखें, गलती को आइडेंटिफाई कर लेना या गलती को बता देना काफी नहीं होता, गलती का सोल्यूशन जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रोवाइड करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Sir, sorry, I would अच्छा, like आपने to ये देखा क्या? interrupt. अगर आप, if you want to share your slides, if you need to share any data, तो आप कर सकते हैं. नहीं, अगर करना चाहिए मेरे ख्याल में जरूरत इसमें फिर ये होता है कि आप ये करते हैं कि जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है उसको आप पिक करते हैं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे बेहतर की जा सकती है, एरर कहाँ पे था, एरर का फिर आप रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हैं कि आपके पास एक पूरा प्रोसेस निकल आता है कि आपका गैप कहाँ पे था। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं सारी गलतियों का। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हमें सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं प्रोसेस में उनको हम ठीक कर देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं हमारा प्रोसेस ठीक हो गया। और फिर जब आफ्टर शॉर्ट टाइम जब वो चीज दोबारा आपको आइडेंटिफाई होती है या क्रिएट होती है, सामने आपके आती है, तो आप ये देखते हैं कि ऐसा क्यों, हमने तो अपने प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से गेज किया था, उसकी करेक्टिव मेजर्स लिए थे। होता ही है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं लेकिन हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, उसको ट्रीट करें, उसके बाद एक अपना इंप्रूवमेंट प्लान आइडेंटिफाई करें। उस रूट कॉज को देखते हुए आप ये देखें कि आपने क्या इंप्रूवमेंट प्लान करना है, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग जारी रखें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि हम अपना प्रोसेस इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम जो है ना प्रोसेस को अल्लाह हाफिज कर देते हैं। तरीकेकार ये होता है कि आपने उस प्रोसेस की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्या होती है कि आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जाती है और उस डिजायर्ड रिजल्ट को कंसिस्टेंट रखती है। देखें, फर्स्ट आना या टॉप करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंसिस्टेंटली टॉप करना इज वेरी ट्रिकी। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम टॉप कर लिया तो खैर चांस बाय चांस भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली टॉप करना जो है ना वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है ना, ये आपको बताती है कि आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा। अच्छा, उसके अलावा फिर ये होता है कि जो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपके प्रोसेसेस को जितना स्ट्रीमलाइन करता है, उससे आपके प्रोसेस ज्यादा स्मूथ होते हैं, ज्यादा
फास्ट एक्ट करते हैं, उनकी जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है आपके वो आपको अचीव होते हैं, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है। और जब ये सारी जो चीजें हैं जो कि हम डिजायर हमारे इफेक्ट्स होते हैं जब वो अचीव हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है वो फिर एक ग्रोथ की तरफ चल पड़ता है और वो ग्रोथ फिर उसकी आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। जब जब अपने एरर्स को रिड्यूस करते रहेंगे और अपनी चीजों को इंप्रूव करते रहेंगे तो आप हर रोज जो है ऊपर से ऊपर जाते रहेंगे और आपका जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है वो इंप्रूव होती रहेगी। Okay, thank you sir. Thank you for explaining that. अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल there's different quality standards होते हैं हमारे organizations में और what do you think कि in with respect to priority अगर हम priorities की बात करें can you just let us know कि what are the quality standards अगर हम किसी भी organization ठीक है, start करने की बात करें what is the basic quality standard that we need in a healthcare system? ठीक है। अच्छा, जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हर कंट्री में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में भी कुछ आपके लिए मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने वो करना ही करना है, यानी लॉ ऑफ लैंड की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उन रेगुलेटरी जो आपके स्टैंडर्ड्स उनको आपने जरूर इंश्योर करना होता है। और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, अगर वो आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी क्वालिटी या जो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो और स्ट्रेंथन होगा और चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं होते, वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक एस्पायरेशन है ग्रोथ के आप स्टैंडर्ड्स को। और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का स्टैंडर्ड है मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड MSDS। वो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वो मिनिमम सेफ्टी या सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी ये बाय लॉ या बाय रूल उसके लिए जरूरी है कि उसने इम्प्लीमेंट करना ही करना है, कोई चांस नहीं है आपके पास, यानी वो आपके लिए मैंडेटरी है। और कोई भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से मकसद ये है कि कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, कोई डेंटल सेटअप है, कोई लेबोरेटरी है, कोई हकीम एस्टेब्लिशमेंट हैज टू ऑप्ट फॉर दैट स्टैंडर्ड हेल्थ केयर मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो प्रोविंशियल स्टैंडर्ड्स हैं या फेडरल स्टैंडर्ड्स वो भी इम्प्लीमेंट करने जरूरी हैं। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं ब्लड बैंक की बात करते हैं तो जो भी ब्लड बैंक आप बनाएंगे उसके लिए आपके जरूरी है कि जो आप प्रोविंशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उससे आपने उसको रजिस्टर करवाएंगे, वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड मैच करेंगे सेफ्टी का तो आप इसको चला सकते हैं। ये तो एग्जांपल दिए मैंने आपको रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जो कि हेल्थ केयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं बट दे आर मैंडेटरी। अच्छा, उसके अलावा ऑप्शनल स्टैंडर्ड्स की बात करें, ऑप्शनल स्टैंडर्ड्स में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी जो क्रेडिबिलिटी ज्यादा है उनमें ISO का नाम आपने सुना। ISO इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी क्रेडिबल स्टैंडर्ड है। ISO के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से ISO 9001 2015 इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरीके से ISO 14001 है जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है। ISO 15189 है जो कि लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स को एक्रेडिटेट करता है। 22008 है जो फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कुछ और स्टैंडर्ड्स को ऊपर ले जाएं आप जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं तो उसमें कैनेडियन स्टैंडर्ड हैं, हेल्थ केयर के ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर और भी अच्छी बात करें तो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड भी समझा जाता है कि ये हेल्थ केयर क्वालिटी को आप स्पेसिफिकली हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ISO 9000 में 2015 को करेंगे दैट इज सकता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा जो कि आप के लिए जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं और ऐसे स्टैंडर्ड जो कि मैंडेटरी नहीं है, जो कि आपके लिए ऑप्शनल है। आप ऑप्ट करते जाएंगे, स्टैंडर्ड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करते जाएंगे। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड भी है, वो है AACI, अमेरिकन एक्रेडिटेशन कमीशन इंटरनेशनल। ये भी एक स्टैंडर्ड है, ये भी ऐसा अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो आप इम्प्लीमेंटेशन से आप अपने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हैं या आपकी जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनको ज्यादा सेव कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के लिए।
Okay, thank you, Almas, and thank you so much, sir, for sparing your valuable time with us and sharing your very informative and insightful knowledge with us. As for all the audience, now on behalf of all the audience, I would like to ask sir, how do we consider it as a career perspective on very entry level positions? Like हम quality में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें जो है वो अपना role for a managerial position, sir. बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, खासतौर पे उन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए या वो जो लोग हैं जो कि हेल्थ केयर क्वालिटी की फील्ड में अपने आप को देख रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स करें और उसको देखें कि सर्टिफिकेट कोर्स से आपको क्या फ़ायदा होगा और वो आपको कैसे आपको मोर जो एक बेटर इनसाइट है ना वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके अलावा फिर ये होता है कि कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो कि फिर बहुत बेहतर समझे जाते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड समझे जाते हैं, या जिसमें अमेरिकन बोर्ड है, अमेरिकन बोर्ड डिप्लोमेट, अमेरिकन बोर्ड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड यूटिलाइजेशन रिव्यू फिजिशियन, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन ऐसे इसके इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा फिर सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर क्वालिटी है, CPPS है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन पेशेंट सेफ्टी है। ये छोटे-छोटे कुछ ऐसे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, ऑल्दो आई नो कि दे आर कॉस्टली, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है आपकी करियर ग्रोथ के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप और कुछ करना चाहते हैं, अपनी डिग्री इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मास्टर्स जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। आप उसमें MS कर सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मास्टर्स कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी एजुकेशन है जो आप इंप्रूव करने से अपने आप को मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए या आप स्पेसिफिकली हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट पोजीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि अब आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने पोजीशंस को देखते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि डिफरेंट पोजीशंस होती हैं और ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली कोई मैनेजर की पोजीशन होती है, डायरेक्टली एक क्वालिटी मैनेजर होता है, वो सब चीज़ें देख रहा होता है, नहीं। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी ऑफिसर हैं, फिर उसी तरीके से क्वालिटी एनालिस्ट हैं, मैनेजर क्वालिटी होते हैं, फिर डायरेक्टर क्वालिटी है, फिर उसके अलावा GM क्वालिटी भी होंगे, चीफ क्वालिटी भी ऑफिसर भी होते हैं। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की होती है। तो जब आप अपने इनसाइट को, अपने नॉलेज को थ्रू दीज सर्टिफिकेशन, थ्रू दीज स्मॉल कोर्सेज जब आप इम्प्रूव करते हैं, तो उसका ये फायदा होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी करियर ग्रोथ के लिए। इन अपनी एजुकेशन और जो आपका फिर आगे जो करियर पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप अगर दोनों को साथ लेके चलें तो आप एक बेहतर तरीके से क्वालिटी प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है बहुत ज़्यादा कि क्वालिटी से रिलेटेड जो है कहीं पता ही नहीं चलता क्वालिटी प्रोफेशनल कहाँ पे हैं या कौन से ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो डेफिनेटली आजकल जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कीन अबाउट पेशेंट सेफ्टी एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको देखना पड़ेगा, आप देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और आप उसको रिव्यू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सारी जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि क्या पोस्ट होती है, क्या पोजीशंस होती हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट हॉस्पिटल डू ऑफर देयर पोजीशंस, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना बेसिक नॉलेज थ्रू ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या ऑनलाइन कोर्सेज, पेड सर्टिफिकेशन या थ्रू डिग्रीज आप इम्प्रूव करेंगे तो आप इसको अपने आप को क्वालिटी की फील्ड के अंदर ले जाने में आपको ज़्यादा ईज़ी होंगे बनिस्बत इसके कि आप विदाउट दीज बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज आप अपने आप को आगे ले जा सकें। अच्छा सर, वो तो ठीक है कि हमें देखना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में कि कौन सी कि क्या जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से उनकी चल रही है और वो कैसे पेशेंट सेफ्टी पर काम कर रहे हैं। बट बिकॉज डायरेक्टली आई डिडंट सी कि कहीं क्वालिटी एनालिस्ट की या क्वालिटी स्पेशलिस्ट की कोई पोजीशन अनाउंस हो रही हो। सो हाउ कैन वी सर से लाइक टू सी कि कहाँ हमें किस तरह की पोजीशंस मिलेंगी? आई मीन व्हाट वुड बी द टाइटल? ऐसी पोजीशंस आती रहती हैं, मेरी नज़र से बहुत गुजरती हैं पोजीशंस। ज़ाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत से लोग ऐसे आपके पास रूटीन में होते हैं। अब जैसे आजकल बहुत से लोग होते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि हमें क्वालिटी में अपना करियर एक्सेल करना चाहते हैं, करियर ग्रोथ बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी पोजीशंस नहीं आती। बहुत सी पोजीशन आ रही होती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो हेल्थ केयर कमीशंस हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर्स की जॉब्स होती हैं, यहाँ पे आ रही होती हैं। तो ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ऑल्दो कि शायद ये थोड़ी-सी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम है।
जैसे आप देखें फिजिशियंस की जॉब हैं, डॉक्टर्स की हैं, नर्सेस की हैं, फार्मासिस्ट की जॉब्स हैं, जो कि वेरी फ्रीक्वेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप एक रूटीन ऑपरेशन से अगर आप देखें तो क्वालिटी के जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से कम हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा जो है लिंक्डइन एक इज़ अ वेरी गुड फोरम। हर रोज़ भी अगर आप या एवरी वीक भी अगर आप लिंक्डइन को देखें तो शायद ही कोई ऐसा होगा टाइम के जब कभी आपको कोई क्वालिटी रिलेटेड कोई ऐसी पोज़ीशन जो अवेलेबल ना मिलती हो उसके ऊपर ना। Right, sir. Thank you so much, sir, for sharing your very insightful knowledge with us, sir. It would enlighten my knowledge and, of course, with the audience as well, sir. That's all from my side. Anwas, please continue. Now we have Sana. I think she has a question for you, sir. Sana, if you could just unmute and योर एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू नो कि आपको क्या लगता है कि मैनेजरियल पोजीशन जो है वो सिर्फ एक पोजीशन है और वी कैन परफॉर्म अ रोल इन हेल्थ केयर क्वालिटी डिपार्टमेंट एज वेल। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज की थी ना एक बात, मैंने ये कहा था कि जो सेफ्टी कल्चर की जब हमने बात की थी तो उसमें एक एलिमेंट है कि सेफ्टी जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, तो क्वालिटी के अंदर अगर आप देखें तो शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे क्वालिटी प्रोफेशनल, अगर आप देखें इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जो मैनेजमेंट पोजीशन है या जो एक मैनेजर की पोजीशन होती है वो नॉट जब एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो कि सारे प्रोसेसेस के ऊपर एक डीप इनसाइट भी रखता है और चीज़ों को असेस करने की उसके अंदर जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि देखें जो बाकी रूटीन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं जो अपने डिपार्टमेंट जिसमें काम ही सिर्फ इसका काम क्वालिटी इंप्रूवमेंट और मॉनिटरिंग और असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट है, तो अगर आप ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करे, नॉट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन बट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर जो है वो ट्रू एम्पावरमेंट और जो रोल है वो दैट इज वेरी मैंडेटरी। राइट सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू अलमास। Thank you, sir, and thank you, Sana. हमारे पास ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस हैं since we are short of time. तो one of the questions, sir, कि अगर हम लोग we're talking about फार्मेसी में अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो इन पेशेंट सर्विसेज की बात करें तो what are the parameters important in that perspective? What do you think? इन पेशेंट में जैसे आप ये कह रहे हैं कि multiple things. इन पेशेंट फार्मेसी के अंदर अगर आप क्वालिटी पैरामीटर्स या क्वालिटी इंडिकेटर्स की बात करें, वो पैरामीटर जिनको आप फोकस करते हुए अपने Yes, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, 2-3 ऐसे की पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप देखते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है, देखें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को मेडिकेशन वक्त पे मिलनी चाहिए, ऐसा ही है? पेशेंट को वक्त पे मेडिसिन मिलनी चाहिए और ठीक मेडिसिन मिलनी चाहिए। तो सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट सर। चीज़ तो ये है कि आप पेशेंट को टाइमली मेडिकेशन अवेलेबल कराएँ, जिसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। इन पेशेंट सर्विसेज में चाहे वो स्टैट मेडिकेशन है, चांस करेंगे। जब वो आप टाइम डिफाइन कर लेते हैं तो आप फिर उसको मॉनिटर के मेडिकेशन अवेलेबिलिटी या आप ये कह सकते हैं कि मेडिसिन अवेलेबल हो, जैसे फॉर्मूलरी क्या है, फॉर्मूलरी में कौन सी मेडिकेशंस हैं, आपके पेशेंट की नीड्स क्या हैं और आपके पास ओपीडी या आईपीडी में जो भी क्या है, तो इन सब को नजर में रखते हुए आपने अपनी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को डिवेलप इन द हॉस्पिटल, नॉट ओनली फॉर्मूलरी बट द मेडिसिन इंक्लूडिंग फार्मेसी का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एरर्स को रिड्यूस करें। एरर्स मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एरर को रिड्यूस करें। नंबर 4 पे है कि सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। हाई अलर्ट मेडिकेशन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दुनिया में बहुत एरर होते हैं। हाई अलर्ट मेडिकेशन बेसिकली वो मेडिकेशन होती हैं जिनमें जो चांसेस ऑफ एरर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या जो आप ये कह सकते हैं थेराप्यूटिक विंडो जो होती है ना, वो बड़ी नैरो होती है। आपने ज़रा सी गलती की और पेशेंट का नुकसान बहुत बढ़ गया। तो हाई अलर्ट मेडिकेशन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इंश्योर करना होता है। उसके अलावा फिर जो आपकी बाकी मेडिकेशन के अलावा जो स्टोरेज मॉनिटरिंग है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। टेम्परेचर मॉनिटरिंग उसके अंदर आ जाती है, मेडिकेशन की स्टोरेज आ जाती है, उसके अलावा सर्जिकल आइटम्स की स्टोरेज है, हाई अलर्ट की स्टोरेज है, लुक लाइक साउंड लाइक मेडिकेशन की स्टोरेज है, उसके अलावा लाइट सेंसिटिव ड्रग्स की स्टोरेज है। ये कुछ ऐसे कॉमन ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे कुछ टॉप एलिमेंट्स हैं 5-6 कि जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी सर्विसेज को इम्पोर्टेंट बेहतर करना चाहते हैं। इस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग लिस्ट है उन एलिमेंट्स की जिनसे अपनी इन पेशेंट फार्मेसी सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये वो
कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपसे शेयर किए हैं कि जिनको आपको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने इनपेशेंट फार्मेसी को इम्प्रूव करते हैं। इसमें if we go deep into it then there is a lot more. We have another question कि अगर सर आपका हॉस्पिटल में ज़्यादा एक्सपीरियंस है but there is a question on community pharmacies कि what can be the quality जी जी parameters in community pharmacies क्योंकि बहुत सारे pharmacists community में involved हैं. There's a lot of people working in community pharmacies. उस perspective से थोड़ा सा please elaborate करें. अच्छा, जैसे कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो जो चीजें मैंने आपको इन पेशेंट की के लिए आपको बताई हैं अभी वो तो चले रहेंगी, रेगुलर मेडिसिन नहीं है तो चला जाए, क्योंकि एम्बुलेटरी पेशेंट है, वो ओपीडी पेशेंट है, वो शायद इन पेशेंट नहीं है टाइम। वही होती है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट बहुत एक्सपेक्ट करता है कि जब आप वेरी एजुकेटेड, दे नो के फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है जो कि आपको फार्मेसी से अपनी मेडिकेशन रिलेटेड ट्रू जो है वो गाइडेंस या जो ट्रू आपको जो हम कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू प्रोवाइड करते हैं वो फार्मासिस्ट को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू हो जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर्स ना हो, क्योंकि देखें इन पेशेंट में मेडिकेशन एरर्स का ये है कि इन पेशेंट में अगर कोई एरर होगा भी तो देयर आर नंबर ऑफ बैरियर्स के जहाँ से आप इस चीज को पिक कर सकते हैं। फार्मेसी देखेगी, डॉक्टर्स देखेंगे, नर्सिंग स्टाफ देखेगा, मॉनिटरिंग होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन ओपीडी में अगर एरर चला गया तो पेशेंट तो आपके पास नहीं आएगा दोबारा। तो इसलिए आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपकी हाई अलर्ट है, लासा है या और भी कोई मेडिकेशन एरर्स हैं, चाहे वो देर जिनके लिए आपको कुछ बेसिक लैब्स जो हैं उनकी जरूरत है देखने के लिए, तो आप अगर इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं तो उनको कैसे डिस्पेंस करते हैं, ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पेशेंट काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि जब फार्मेसी पे पेशेंट आते हैं ना कम्युनिटी फार्मेसी पे, तो कई सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि एजुकेटेड भी नहीं होते, जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनको क्या मेडिसिन चाहिए। वो जस्ट आएंगे और आपसे कहेंगे जी मुझे 2 दिन से बुखार है, मुझे कुछ दवाई दे दें ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। जो लोग कम्युनिटी फार्मेसी पे काम करते हैं उन्होंने डेली ऐसे पेशेंट से एनकाउंटर होता होगा उनका। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेशेंट काउंसलिंग वाला या जो पेशेंट गाइडेंस वाला जो एक एलिमेंट है ना, दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये कुछ ऐसे वो की एरियाज हैं जो कि कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू है, पेशेंट काउंसलिंग है, पेशेंट गाइडेंस है, पेशेंट की जो सेफ्टी ऑफ मेडिकेशंस है, इनके ऊपर जो है अगर आप ज़्यादा अपनी वो करेंगे ना और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप जो रेगुलेटरी मैटर्स जो हैं उसको भी इम्पोर्टेंट है, और फार्मेसी के लिए भी और कम्युनिटी फार्मेसी के लिए भी, क्योंकि रेगुलेटरी मैटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइसेंसिंग है, उसके अलावा जो फिर मेडिकेशंस की एक्सपायरी है, उनके अलावा जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस की स्टोरेज है, उसके अलावा जो आपकी कंट्रोल ड्रग्स होते हैं उनको कैसे स्टोर कर रहे होते हैं, ये पूरा डाटा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी, और ये ऐसे पैरामीटर हैं जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मेसी के लिए ज़रा सा इम्पोर्टेंस के जो है वो हामिल हैं। Moreover, sir, maybe we can also work on therapeutic drug monitoring community एग्जैक्टली pharmacy में वही मैंने जो trials बताया, जिनके लिए आपके पास start है। जिनके ऐसे पेशेंट हैं जिनको आपको लैब्स देखने की जरूरत है, या जिनमें आपको ये देखने की जरूरत है कि ऐसे पेशेंट जिनके लिए कुछ प्री रेक्विजिट है, जिनके लिए कुछ ऐसे प्री रेक्विजिट है जो कि आपको जानने जरूरी हैं फार्मेसी के ऊपर, ताकि पेशेंट घर चला कर उसने मेडिसिन ले ली तो वो एक आपके लिए सीवियर कॉन्सिक्वेंस भी पेशेंट के लिए हो सकता है वो। That's true. Sir, there's one more question. I think that would be the last one we would do because time बस खत्म हो रहा है हमारा. We have only 5 minutes. So there's a question on आपने international courses की बात की in quality. Can you just mention some of the websites या फिर कोई courses बता दें अलग से, ये जो graduates हैं, pharmacy graduates हैं, they want to take those courses. अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें ना तो कोर्सेरा जो है ना, कोर्सेरा के ऊपर काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। आई विल शेयर विद यू गाइस 2-3 बेसिक कोर्सेज, तो आप अपने फोरम के ऊपर जितने भी ऑडियंस हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आफ्टर द सेशन मैं आपसे शेयर कर लूँगा। कोर्सेरा भी है, उसके अलावा फिर कुछ और भी ऐसे फोरम्स हैं। IHI भी कुछ कोर्सेज ऑफर करता है, कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। तो ये कुछ ऐसी उसके अलावा AHRQ है, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी, जो अमेरिका है। AHRQ भी कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा होता है, तो इनकी डिटेल है ये वेबसाइट्स पर जो कि आप रूटीनली देख सकते हैं। IHI है, AHRQ है, कोर्सेरा है, उसके अलावा और भी वेबसाइट काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन वेबसाइट्स हैं। लिंक्डइन खुद से कुछ ऐसे, जैसे लिंक्डइन इंस्टीट्यूट के थ्रू भी लोग जो है कुछ लिंक्डइन के कोर्सेज कर रहे होते हैं।
तो ये कुछ ऐसी कॉमन जगह हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप ऑनलाइन और फ्री कोर्सेज जो हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। Say, thank you, sir. Lastly, one last question from me would be, then we would get to the audience, क्योंकि audience जो है ना वो next courses वगैरह की बात करी. We have generally told them about it. अच्छा. Sir, what about CPHQ? You have done other certifications. How important are these certifications, और ये कैसे जो है ना in a career it's going to help any pharmacist? How important it is? Like, इसमें ये होता है कि आप जो सर्टिफिकेशन होती है ना, बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेशन। अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ना जिनकी मैंने बात की, CPHQ है या अमेरिकन बोर्ड है, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन जो है ना इनकी होती है। इनके लिए आपको एक थॉरो स्टडी करनी पड़ती है। इनके लिए एक कोर्स करिकुलम जो है वो NAHQ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी अमेरिका, NAHQ जो है वो कोर्स लॉन्च करती है CPHQ के एग्जाम के, वो कैसे आपने करने हैं। उसके अलावा फिर आपको जो रिक्वायर्ड बुक्स होती हैं उसके साथ जो भी स्टडी मटेरियल वो सजेस्ट करते हैं आपको खुद से कि आप इन चैप्टर्स के लिए या इन सेक्शन के लिए कौन कौन सी जो सोर्स बुक्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद फिर आपने फी सबमिट करनी है, एग्जाम देना है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि हाई रिस्क होता है तो हाई प्रॉफिट भी होता है, लो रिस्क है तो लो प्रॉफिट। जितनी ज्यादा आप एफर्ट पुट इन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ग्रोथ भी बेहतर होगी और उतना ज्यादा आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। बस एक बात याद रखें, मेरा सबके लिए एक समझ लें कि एक टेक होम मैसेज ये है कि हमेशा अपने आप को जो है ना लर्निंग फेज से कभी ना निकालें। आपने हमेशा बचपन में देखा होगा, सुना होगा, स्कूल की दीवारों पे भी लिखा होता था बचपन में कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। तो वी शुड मीन इट। हमें इस चीज पे इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए कि हम हर वक्त अपने आप को जो है ना ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, अपना नॉलेज इंप्रूव करें, थ्रू डिग्रीज इंप्रूव करें, थ्रू सर्टिफिकेशन इंप्रूव करें। क्योंकि जितना फ्रीक्वेंटली जो है ना नॉलेज आजकल बढ़ रहा है ना, तो आपका नॉलेज से अपडेट रहना भी उतना ही जरूरी है। और आई बिलीव कि जो आपकी बेसिक डिग्री होती है ना 5 से 7 साल आपको हेल्प करती है। उसके बाद आप फिर जो है ना माशरे में बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर आपको अपना जो है ना करंट नॉलेज के साथ अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है। okay. Thank you, sir. I hope it was a very informative session for everybody else. हमारे लिए तो it was like always very informative. Just like sir, आप हमेशा से जब भी कोई session दिया है, it has been always helping us. हमेशा से we remember everything that you have taught us. That's so kind of you. So thank you for joining us It's today. very kind of you, sir. Thank you so much for sparing your valuable time. Yes, आपने टाइम निकाल के हमारा सजेशन लिया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। बाकी फॉर द ऑडियंस, आई होप इट वाज अ गुड सेशन फॉर एवरीबडी एल्स। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप फीडबैक फॉर्म में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें द फीडबैक। बाकी लाइक आई सेड प्रीवियसली, वी हैव अ कोर्स कमिंग अप, so stay tuned for that. We will be updating you guys on that based on clinical pharmacy में होगा वो ज़्यादातर। So